یہاں کی سلاجیت مشہور ہے. سلاجیت وہ ہے جو پتھر کے آنسو ہیں، مطلب موم کی طرح نکلتی ہے پتھر سے، اور اسے چنے سے آدھی دودھ میں گھول کر کے اگر پیو نا تو گھٹنوں میں درد نہیں ہوتا، کمر میں درد نہیں ہوتا، پوری رات کھڑے رہو نا تو درد نہیں ہوتا. تو میں یہ سوچ رہا ہوں یا اللہ یہ جو کھڑے ہیں ان کے سلاجیت تو ہاتھ نہیں لگ گئی ہوئی. اچھا اتنی دیر سے ان کے گھٹنوں میں درد ہی نہیں ہو رہا. آجا وہ سامنے والے کہاں کی سلاجیت پی کے آئے؟ نہیں انہیں اجازت ہے کیونکہ بیٹھ کے میں دکھوں گا نہیں. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ساری کائنات کے مالک و مختار، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پورا مجمع جھوم کر کے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارو، عزیزو، بچوں، نوجوانوں، بزرگوں، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی کی منزلیں طے کر رہا ہے الحمدللہ. جن حضرات نے اس پروگرام کو سجانے منانے میں کوششیں کی ہیں، چندہ دیا ہے، نرم نرم بستروں کو چھوڑ کر کے یہاں پر آئے ہیں، یہ صرف اللہ رسول کی محبت میں آئے ہیں. مولا اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ان سب کے گھروں میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ اس بستی پر تو اپنا کرم فرما، رحم فرما، فضل فرما، مسلمانوں کے گھروں میں برکتیں اور خوشحالیاں عطا فرما. اس بستی کا کیا نام ہے بیٹا؟ کھیا، اور آگے ایک لفظ اور تھا کھدر. کھیا، کھدر. میں آس پاس میں تو آیا ہوں مگر مجھے لگتا ہے یہاں پہ پہلی مرتبہ آیا ہوں. ماشاءاللہ آپ بہت اچھے ہیں، اخلاق اچھا ہے. سب لوگوں سے تو میری ملاقات نہیں ہوئی تھی مگر سب سے پہلے ہم پردھان جی کے یہاں، ہمیں وہیں لے جایا گیا، پردھان جی کے یہاں گئے، انہوں نے اچھے سے کھانا کھلایا، پوری دیکھ ریکھ. پھر دوسری جگہ گئے، ماشاءاللہ کسی بھی چیز کی کمی نہیں، اللہ برکتیں عطا فرمائے. آپ لوگ سوچ رہے ہوگے نا ناظم صاحب نقیب اجلاس پیکر محبت اخلاص ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم سے کہ سارے علماء سے ہی محبت کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے ان پر اعلی حضرت کا فیضان برستا ہے. بزرگوں کی نظر کرم اللہ اور نظر کرم سے ان کو مالا مال فرمائے. میرے بارے میں بتا رہے تھے، آپ سوچ رہے ہوگے کہ میں کرسی پہ بیٹھا ہوں اور سب سے اچھا میں ہی ہوں، مگر ایسا نہیں ہے. پتہ نہیں یہ جو ممبر شریف پہ حضرات بیٹھے ہیں ان میں یا آپ لوگوں میں یا بہنوں میں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند ہوں.
लोग फोन करते हैं क्योंकि तकरीर सुनते हैं हमारी, तो इस वक्त फिर एक से एक मोबाइल जोड़ लेते हैं, तो 10-10 20-20 जितने भी जुड़ पाते हैं वो लोग तकरीरें सुनते हैं। इस वजह से इस वक्त फोन आता है, कॉल लेता हूँ। तो मैं ये बता रहा था, आप लोगों में भी कौन ऐसा छुपा हुआ हो, सीधा साधा भोला भाला, जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। और इन लोगों में आप देख रहे हैं ये लोग बैठे हैं सब, मुझे मेहमान बना दिया और इस कुर्सी पे बिठा दिया है। मैं इस लायक नहीं हूँ, दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। और जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है ना, पता नहीं कब आंख बंद हो जाए। मगर प्यारो, जब तक सांसें हैं ना, काम ऐसा कर जाओ, ऐसा कर जाओ, जो लोग तुम्हारा जनाजा लेकर के कब्रिस्तान में जाए ना, तो चर्चा करें, यार बेचारा गरीब था मगर बड़ा भोला इंसान था। समझे, मकान इसका बहुत अच्छा नहीं था मगर किसी को इसने सताया नहीं, तकलीफ नहीं दी। ऐसे बन के जाओ। तो ये बच्चे भी हैं, कुछ बच्चे थोड़ा सा ज्यादा भी बोल रहे हैं, मगर एक दिन वो होगा कि यही बच्चे बड़े होकर के इंशाअल्लाह ऐसे भी बन सकते हैं। मैं दुआएं करता हूं कि इस्लाम का झंडा इन लोगों के हाथ में होगा। क्योंकि अभी न पता नहीं है ना, ये उम्र ऐसी है, ये तो खेल समझ रहे हैं, कूद समझ रहे हैं, मगर इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है ये अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, माँ बाप का सर नहीं देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह। कोई ना बेटा बेअदबी करेगा, अभी तो टांगे उठा रहे हैं, कूद रहे हैं एक दूसरे, बहुत देर से देख रहा हूँ, समझे, बहुत देर से एक दूसरे के टांगे मार रहे हैं, यूं इस तरीके की बातें कर रहे हैं। आप समझ रहे हो कोई नहीं देख रहा, ये जो चैनल लगे हुए हैं ना, ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है तुम्हारी हरकतें, समझ रहे। अब बताओ कितनी दूर तक बदनामी होगी, समझे, सब ये चैनल जो लगे हुए हैं, और पूरी बड़ी बड़ी दूर तक। इन लोगों को तुम ऐसे ही समझ रहे हो, ये इतने अदब से, इतने बड़े बड़े आलिम लोग, बुजुर्ग हैं, ये सब हम आए हमारे हाथ चूम रहे, तुम टांगे उठा रहे हो, कोई कुछ कर रहा है, तुम्हें परवाह नहीं है, पता नहीं है अभी बेटा, समझे। ये उलमा को समझे जिनके सीने में कुरान है, समझे, जिनके सीने में कुरान। अच्छा, मेरी बात भी गलत हो सकती है, आपकी भी गलत हो सकती है, क्या नबी की बात भी गलत हो सकती है? बोलो, नबी की बात गलत हो सकती है क्या? अब नबी फरमाते हैं ये लोग ऐसे हैं ना, एक आलिम, आलिम रब्बानी की बात कर रहा हूं, किसी भी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, कुछ पढ़े भी नहीं, दुआ भी ना करे, खाली गुजर जाए, मर्रा का लफ्ज आएगा, खाली गुजर जाए, तो उसके गुजरने की बरकत ये होगी, गुजरने की खाली बरकत ये होगी कि अल्लाह ताला उसके गुजरने की बरकत से उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। कितने लोग ये आए हैं, इनमें कितने हाफिज हैं, मदरसे के बच्चे भी हैं, समझे, हाफिज हैं। तुमसे छोटे छोटे बच्चे हमारे मदरसों में हाफिज होते हैं, समझ रहे हैं। तो आप जानते हैं, एक हाफिज के बारे में आया, अपने ये जो तुम्हारे बड़े बड़े भाई हैं, कमेटी वाले, चाचा जो भी लगते हो, इनको दुआएं दो बेटा, वरना ऐसी उम्र के लड़के अक्सर डीजो पे नाचते हैं। इन्होंने आज ये जलसा सजाया, देख रहे हैं आप, पूरा गांव इकट्ठा, आसपास से लोग मोटरसाइकिलों से भी आए। एक हाफिज के बारे में बस, सही, बिल्कुल सही है माइक, हाँ बढ़िया। एक हाफिज के बारे में बताया, और बताया किसने? आका ने बताया। तवज्जो रखो बेटा, किसने बताया? नबी ने बताया। हाँ, क्या बताया? एक हाफिज अगर घर में हो, ये कितने हाफिज हैं? तो ऐसे 10 लोग जिन पे गुनाहों की वजह से जहन्नम वाजिब हो चुका था, कि उन्हें जहन्नम में जाना वाजिब है, ऐसे 10 लोगों की एक हाफिज कुरान
ذریعہ بخشش بنے گا اور وہ ان کو جنت میں لے کر کے جائے گا۔ یار ذرا ان کا مقام تو پہچانو، ان کا مرتبہ تو پہچانو۔ قرآن شریف اچھی چیز ہے، اس کو دیکھنا عبادت ہے، کعبہ بھی اچھی چیز ہے، اس کو دیکھنا عبادت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں 5 چیزیں جن کو دیکھنا عبادت ہے، یا 5 چیزیں ایسی ہیں جن کو کرنا عبادت ہے، ان میں سے ایک کم کھانا عبادت ہے۔ کیا بولو؟ کم کھانا۔ اب تم کھاتے کھاتے پیٹ پھاڑ لو، ڈونگے پہ ڈونگا، اور پھر جا کر ڈون ڈون، اور پھر شکایت کرو ڈاکٹر صاحب یار گیس بہت بن رہی ہے ہماری، سمجھے؟ بعض عورت بھی کم نہیں کھاتی ہے، وہ بھی ڈونگے پہ ڈونگا، اور پھر کہتی ہے پتہ نہیں میری گیس کیوں ختم نہیں ہوتی۔ آجا تمہیں ہنسی کی میں نے ایک اندازہ لگایا، تمہیں ہنسی کی باتیں جلدی سمجھ میں آتی ہیں، یہ بھی میں نے اندازہ لگا لیا، سمجھ میں آ رہی ہے۔ آجا تم تو ہنسی رہے ہو مگر ماشاءاللہ میک والے بھی مسکرا رہے ہیں۔ تو نبی فرماتے ہیں قلت الطعام، کم کھانا عبادت۔ 2 لقمے کم کھاؤ گے نا تو نماز پڑھنے میں کاہلی نہیں ہوگی، اور عورتوں کو تو 4 لقمے کم کھانا چاہیے، سمجھے؟ 4 لقمے کم کھانا چاہیے، ورنہ یہ تو اتنی چر 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 جب تک۔ چلو نمبر 2 والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت۔ نمبر 3 والنظر الی الکعبہ، کعبے کو دیکھنا عبادت۔ نمبر 4 والنظر الی المصحف، قرآن پاک کو دیکھنا عبادت۔ اور نمبر 5 والنظر الی العالم، عالم کو دیکھنا عبادت۔ یار یہ نبی فرماتے ہیں نا، اگر نبی جس کو کہہ دیں حلال تو وہ حلال، جس کو کہہ دیں حرام تو وہ حرام۔ یہ لوگ وہ ہیں، یہ تو آپ لوگوں کی مہربانی ہے، مجھے کرسی پہ بٹھا دیا ہے اس لیے تاکہ میں تقریر کروں، مگر ایسے مت سمجھنا کہ ان کا مقام بھی کم ہے، ان کے سینے میں بھی قرآن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اب توجہ رکھنا، میں شروع ہو رہا ہوں، شروع تو پہلے ہی ہو گیا تھا مگر اب تمہاری طرف آتا ہوں۔ آقا نے فرمایا، ایک جملہ اتنا پیارا اتنا پیارا اتنا پیارا آ رہا کہ اگر اس کو نا دل کی تختی پہ نوٹ کر لو گے نا تو کہیں مار نہیں کھاؤ گے۔ میں نے بھی کہا تھا کچھ لوگ زیادہ بول رہے ہیں، اس کا بھی دھیان رکھیو۔ نبی فرماتے ہیں 2 چیزوں کی حفاظت کر لو، جنت کی ضمانت میں لے لوں گا۔ کتنی چیزوں کی بولو پیارے؟ تم سوچ رہے ہوگا یار پتہ نہیں دھانوں کی حفاظت کروائیں گے، گیہوں کی حفاظت کروائیں گے، گنے کی حفاظت کروائیں گے، یا دودھ کی، کیوں یا دودھ کا کام زیادہ ہے، یا بھینس کی حفاظت کروائیں، مگر آقا کا فرمان تو سنو۔ آقا فرماتے ہیں 2 چیزوں کی حفاظت کر لو، جنت کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ نمبر 1 زبان کی حفاظت کر لو، نمبر 2 شرمگاہ کی حفاظت کر لو۔ اگر ان 2 کی حفاظت کر لی تو جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ مگر زبان کی حفاظت اللہ، اس کھیا کھادر کھدر سوری کیا کھیا کھدر، کھیا کھدر میں تم نے کوئی شخص ایسا دیکھا ہے جس کے بھائی کا انتقال ہو گیا، موت آ گئی، اسے بیچارہ جنازہ رکھا لیٹا، تو اس کا بھائی کیا کرتا ہے؟ آنکھوں میں آنسو ہوتے دعا کرتا ہے، بچوں کو بلا کے قرآن خوانی کراتا ہے۔ کبھی تمہارے کھیا کھدر میں ایسا دیکھا کہ اس کا بھائی مرا ہوا لیٹا ہو اور وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہو؟
तुम ने देखा कभी किसी को खैया खद्दर में? नहीं देखा ना? औरतों ने नहीं देखा ना? चलो, अगर तुम्हारे गांव में कोई ऐसा आ जाए तो उसे घर में जगह दोगे? उससे दोस्ती करोगे? रिश्तेदारी करोगे? पक्का? गले में हाथ डाल के घूमोगे? और अगर तुम में से 50 आदमी मैं निकाल दूं तो तौबा करोगे? माशाल्लाह। बोलो, अब क्यों चुप हो गए? आप सोच रहे होगे यार हमारी इतनी उम्र हो गई और ये तो सैयद हजरत पहली मर्तबा आए हैं, इन्हें कैसे पता चल गया? मैं आज बताता हूं। कब होंगी? 80 नहीं, मैं 80 की बात कर रहा हूं। औरतें 80 होंगी। सोच रहे होंगे यार इन्हें कैसे पता चला, मगर बात बिल्कुल सच्ची करूंगा। ये कैसी बात चल रही है जनाब? मरा हुआ भाई, कौन अपने भाई का गोश्त खाएगा? मेरी बात पलटा दोगे, नाजिम साहब की पलटा दोगे, कारी साहब की पलटा दोगे, इन उलमा की पलटा दोगे, सबकी गलत हो सकती है। क्या कुरान पाक गलत हो सकता है? अगर कोई कुरान पाक को गलत माने तो क्या वो इंसान सही हो सकता है? अल्लाह बरकतें अता फरमाए। वो इंसान सही, क्योंकि कुरान का कोई भी लफ्ज गलत नहीं है। तुमने मुझसे वादा किया है तौबा करके जाना होगा। कौन है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है? कुरान पाक से पूछो। कुरान पाक तू बता, क्या खैया खद्दर में कोई ऐसा है जो मरे हुए भाई का गोश्त खाता है? जरा कुरान सुनो। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। कुरान पाक की आयत है, साफ तरीके से खुली हुई आयत। पूछ लो, और अगर कोई गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम। अपने घर जा करके इसका तर्जमा देख लेना। कोई मौलाना या मुल्ला नहीं, बल्कि अल्लाह फरमाता है। अल्लाह क्या कहता है सुनो। अगर कोई एक दूसरे की गीबत करता है, कोई एक दूसरे की चुगली करता है, कोई पीठ पीछे बुराई करता है, इस जबान के जरिए अगर किसी की बुराई करता है, गीबत करता है, चुगली करता है, मेरा मौला कहता है गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। अब अंदाजा लगाओ कितने लोग गीबत करते हैं। 50 मैंने कम बताए, ज्यादा होंगे। औरतें 80 कम बताई, ज्यादा होंगी। अल्लाह का फरमान है ये। गीबत करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अल्लाह चौराहे पे बैठे, बैठक में बैठे, इधर आधर बैठे, तेरी गीबत मेरी गीबत, इधर की उधर की गड़बड़। और यहाँ तो अल्लाह का फजल है जनाब, मैं हिंदुस्तान में घूमता हूँ, कमेटी वालों हिंदुस्तान में घूमता हूँ, अल्लाह का फजल है। कहीं कहीं जलसा होता है ना तो मुसलमान ही बात इतना बड़ा कमबख्त है, कभी पुलिस को कभी किसी को फोन कर देता है ताकि इनका जलसा खराब हो जाए। जलसा किसका है? किसी के बाप का, रसूल पाक का है। हिम्मत जो हश्र में मुंह दिखा लोगे। इस गांव का तो मुझे पता नहीं है क्या हाल। मैं इस वजह से बात कह रहा हूं क्योंकि इस चैनल वाले मेरी तकरीर कैच करते हैं। अगर कहीं ऐसा हो तो वो अपनी जबान, अपने फोन को रोक के रखे। इतना हजरत, इतना जलन, हसद, कीना बगदा, एक दूसरे की गीबत करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। 2 औरतें नबी की बारगाह में गई।
तंबीहुल गाफिलीन किताब है, उसमें लिखा है। दो औरतें गईं, आका फरमाते हैं तुम दोनों अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा करके आई हो। जब इतना कहा तो दोनों कहने लगी आका नहीं खाया है। मेरे नबी जलाल में खड़े हो गए और उनसे कहा खड़ी हो, वहां पर जाकर के हल्क में उंगली डाल के तय करो, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हल्क में उंगली डाल के जब तय किए, अल्लाह अल्लाह, जब पलटी हुई है तो देखा गोश्त की बोटियां और लोथड़े और टुकड़े निकल रहे थे। उन दोनों की चीख निकल गई, कहने लगी आका हमारी माँ आप पे कुर्बान, हमारे बाप आप पे कुर्बान, हमारी औलाद आप पे कुर्बान, आका सब कुछ हमारा आप पे कुर्बान। हमने गोश्त नहीं खाया था, मगर ये बोटियां कहां से आई? नबी बोले मुझे मालूम है, मगर जब तुम घर से चली थी तो किसी की गीबत करती हुई चली थी, और गीबत करना, चुगली करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अल्लाह, गीबत करोगे आज के बाद? नहीं करोगे तो हाथ उठाओ। और सुनो, हाथ उठाए रहो। तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, अगर नबी के बच्चों से मोहब्बत करते हो और अल्लाह से डर के तौबा की नियत से हाथ उठा रहे हो तो उठाए रहो। और अगर तुम्हारे रस्मी नारे या ऐसे तो रख लेना, और अल्लाह से डर के अगर मोहब्बत उठा रहे हो, अल्लाह से डर के अगर उठा रहे हो तो उठा रहे हो, बोलो या अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला हमारे गुनाहों को माफ कर दे, आज के बाद किसी की गीबत नहीं करेंगे। रख लो यार। मैं बताऊं, पता नहीं क्यों मेरा दिल भर आता है यार। इन बच्चों से पूछो इन्होंने कितनी मेहनत की, चंदा किया, हमारी तारीख के लिए कितने फोन किए। इनसे तो डायरेक्ट बात ही नहीं हुई। अक्का शाहपुर के हाफिज मोहम्मद दानिश जो कलियर शरीफ में रहते हैं, समझे, मुझे लगता है साबिर पाक का करम था, वहां से ये तारीख मैं तुम्हारे यहाँ आया हूँ। तुमने मेरी इतनी खिदमत की, इन बच्चों ने पानी ला के दिया ठंडा, ये गुलाम यासीन नाम है इस बच्चे, ठंडा गरम, हुजूर क्या चाहिए। मैं अब कभी कभी सोचता था यार मैं इस लायक नहीं हूँ, मगर इतनी पूछगछ होती है। मैं तुम्हें हंसा के, खिला के, खुदा के चला जाऊं, तुम नोट तो इकट्ठे कर लोगे, मगर चाहता ये हूं कि तुम्हें अपने नाना का पैगाम दे करके जाऊं। बोलो सुनना चाह रहे हो? सुनना चाह रहे हो? आज के बाद कभी दीनी काम में किसी भी रुकावट मत डालना, कहीं पर भी, और किसी भाई की ना गीबत मत करना, चुगली मत करना। सारी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत। अब सुनो, दूसरा पॉइंट उठाता हूं। अच्छा मेरी बातें समझ में आ रही है? ऐसा तो नहीं है जोश में होश में सब गड़बड़ हो रहा? इम्तिहान ले लूं, फेल तो नहीं हो गए? पक्के में सुनना चाह रहे हो तो फिर हाथ उठाओ, कौन कौन सुनना नहीं चाह रहा? सही है, बिल्कुल बिल्कुल भी तुम फेल नहीं हुए। अच्छा आप इन कमेटी वालों ने भी उठा दिया कि हम भी सुनना नहीं चाह रहे, ये जो बिल्ले डाले हुए। मैं तुम्हें इसलिए ये मैंने बात तफरीहन की ताकि तुम्हारा जहन फ्रेश कर दूं। अब दूसरा सबक पढ़ा रहा हूं, दूसरा सबक, क्योंकि ताकि तुम्हारी गुनूदगी और ये सब भाग जाए ना और जहन फ्रेश हो जाए। अब तैयार हो जाओ सुनने के लिए। ये कितने प्यारे लग रहे हैं बैठे हुए ना, ऐसा लग रहा है बिरयानी की प्लेट आने वाली है। बैठ अब वो दो बच्चे ऐसे लग रहे हैं जैसे दीवार रोकने के लिए पिलर खड़े करे। बैठ जा, बड़ी जल्दी बैठ गए, जल्दी। एक बात बताऊं, एक बात सुनो हजरत, जब मैं नेपाल गया ना, नेपाल तकरीर करने, सुनने की बात है, जब मैं नेपाल गया तो एक हकीम जी, उन्हें पता चला कि सैयद साहब है हजरत,
तो वो बड़ी मोहब्बत से हाथ चूम रहे हैं, कभी कुछ। हुजूर बोले किसी चीज की जरूरत, मैंने कहा बताओ यार कौन सी चीज मशहूर है? तो वो हकीम थे, उनको वही बातें याद। चोर होता तो उनको चोरी के गुण याद होते हैं, कोई शराबी होता तो उसे पौए याद होते हैं, ये सब बात। पहलवान होता उसे दाव याद होते हैं। बोले हजरत यहाँ की सलाजीत मशहूर है। सलाजीत वो है जो पत्थर के आंसू है, मतलब मोम की तरह निकलती है पत्थर से, और उसे चने से आधी दूध में घोल करके अगर पियो ना तो घुटनों में दर्द नहीं होता, कमर में दर्द नहीं होता, पूरी रात खड़े रहो ना तो दर्द नहीं होता। तो मैं ये सोच रहा हूँ या अल्लाह, ये जो खड़े हैं इनके सलाजीत तो हाथ नहीं लग गई हुई? अच्छा, इतनी देर से इनके घुटनों में दर्द ही नहीं हो रहा। अच्छा, वो सामने वाले कहाँ की सलाजीत पी के आए? नहीं, उन्हें इजाजत है, क्योंकि बैठ के मैं दिखूंगा नहीं। बैठ के अगर तुम भी बेटा अगर थक जाओ ना तो खड़े हो सकते हो, जब थक जाओ तो खड़े हो सकते हो।